Walaikum Assalam, Khadija, Alina, and Kurutunan. How are you all people? How are you doing? Class, please make sure that am I audible to you people because I cannot see the comments from your side. I'm great, Alhamdulillah, Alina. Thank you so much for asking. Okay, good Kurutunan, good Khadija. Okay, thank you so much. Okay, class. Last weekend we had covered some things. From today we are going to start our parts of speech. Basically, Walaikum Assalam, Huzaima. We will be going through all the parts of the speech. Along with that, we will be going through the types of each part of speech in a very detailed and comprehensive manner. So, Walaikum Assalam, Huzaima. Mustafa, we will be starting your textbook like after covering grammar because grammar is the first priority, then we will be moved towards your textbook. Okay, class. So starting with parts of speech, can you people tell me that what do you mean by parts of speech? Any idea? Yes, we will be, of course, we will be going through composition as well. It will be finished in this batch that you have registered yourself that are used in our English speaking. Okay. Anybody else? Good, Khatija. Basic types of words that make up a sentence. Okay, Alina, good. Parts of speech are the words that are used in the speech and sentence. Okay, good. Okay, very well done, class. So basically, हम बेसिकली जब ग्रामर को स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करें जैसे मैंने आपको लास्ट वीक क्लासेस में सेंटेंस के बारे में बताया एंड वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज वेल now I have moved towards the parts of speech और बेसिकली जब हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं सो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करते हैं और हमें पता होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव एंड ऑल दीज थिंग्स बट यू शुड नो दैट व्हाट इज मेंट बाय स्पीच आर पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक है like someone like I have asked you now the parts of speech so you like you people who told me that are those types of the words which make up a speech ठीक है parts of speech class basically आप लोगों ने अपनी daily life से example लेनी है that if you are making something or you are cooking something ठीक है or your mother is cooking something for you so she will be like needing a lot of ingredients in order to make up that food for example if she is making a biryani for you people so she will be needing a lot of ingredients ठीक है ये नहीं है कि वो सिर्फ उनको राइस ही चाहिए होंगे उनको स्पाइसेस चाहिए होंगे उनको चिकन चाहिए होगा उनको राइस चाहिए होंगे उनको वाटर चाहिए होंगे उनको कलर चाहिए होगा ठीक है सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके वो आपको फूड प्रोवाइड करेंगी ठीक है एडवर्ब जी गुड इसी तरह क्लास जो आपकी स्पीच होती है ठीक है अब सिर्फ आप लोगों की स्पीच ये नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आप लिखेंगे कि मैम हमें कंप्रीहेंशन अभी मिला हुआ है सो आप बेसिकली लिखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली आपके टू टाइप्स ऑफ स्पीचेस होते हैं ठीक है ये आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है एक होता है ओरल स्पीच ठीक है उसको आप वर्बल स्पीच भी कह सकते इट विल बी एंडिंग एट 3:30 how much time does the class last okay so it will be lasting for 30 minutes today
Okay, so class, we have basically two different parts, types of speech. The one is verbal or oral. Verbal is the one where a person is speaking, ठीक है, and the listener is listening. For example, right at the very moment मैं बोल रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओरल स्पीच या वर्बल स्पीच. आपको टेस्ट भी मैम कभी कभार कहती है ना कि आप लोगों को कल ओरल टेस्ट हो. ओरल टेस्ट का मतलब ये है कि आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, आपका ओरल टेस्ट यानी कि आप सुनाएंगे, ठीक है. तो एक तो ये स्पीच होती है आपके पास, दूसरी स्पीच आपके पास होती है रिटन. रिटन मीन्स, रिटन आप ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि व्हेन वी ट्राई टू राइट ऑल दो सेंटेंसेस, लाइक राइट एट द वेरी मोमेंट, अगर मैं ये जो कुछ बोल रही हूँ आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दूं, दैट स्पीच विल बी नोन एज अ रिटन स्पीच. तो जब आपके डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक सेंटेंस बोलूँ, ठीक है, जबानी है इसको. अभी मुस्तफा ने जो क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच टाइम डज द क्लास लास्ट, एंड माय आंसर वाज द क्लास विल बी lasting for 30 minutes. ठीक है. He has asked a question, I have given the answer. But इस answer में class, we have different types of words, we have different types of basically ingredients जो different group से belong करते हैं. For example, अगर आप दा को देखेंगे, so that is your article, ठीक है. क्लास को देखेंगे, so this is your noun, ठीक है, सब्जेक्ट भी है और आपके पास नाउन भी है, ठीक है. वेल बी को आप देखेंगे, so this is your बेसिकली है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर ज्यादा इसको हम स्पेसिफाई कर लें तो ये आपका वर्ब है सेंटेंस में, ठीक है. लास्टिंग फॉर, फॉर इज योर प्रेपोजिशन, ठीक है, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा. 30 मिनट्स, ये दिस इज टेलिंग अस टाइम, ठीक है. यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ये, अगेन नाउन, ठीक है. और मोर स्पेसिफिकली अगर हम करें तो ये एडवर्ब में आ जाता है क्योंकि आपको टाइम बताया जा रहा है, ठीक है. सो आपके पास डिफरेंट क्लास बेसिकली वर्ड्स कंबाइन हो रहे. और दूसरी एक इसका पर्पस ये होना चाहिए कि वो ऑर्डर फॉर्म में. अब आप ये नहीं कह सकते कि द 30 मिनट्स फॉर क्लास लास्टिंग विल बी, नो, द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट. एक प्रॉपर ऑर्डर का होना भी बहुत जरूरी है कि आपके जितने वर्ड्स हैं सेंटेंस में वो प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस दें. तो ये जब सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और हम एक स्पीच बनाते हैं, ठीक है, बेशक वो रिटन भी हो सकती है, वो ओरल भी हो सकती है, इन तमाम बेसिकली पार्ट्स को हम कहते हैं या इंग्रेडिएंट्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश हैज, एनी आइडिया? 8. ठीक है अलीना, गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? 8. This is subject, or you can say this is the noun, ठीक है. This would be your noun. Okay. So moving towards our parts of speech, कि हमारे पास parts of speech कितने हैं? So let me write it over here. So the first one is noun. The second one is pronoun. The third one is verb. The fourth one is adverb. The fifth one is adjective. ओके क्लास, ये जो बेसिकली अभी मैंने पार्ट ऑफ स्पीच लिखा ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव नहीं है. आपका जो डी है दैट इज ऑलवेज साइलेंट हियर, ठीक है. इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, डी इज साइलेंट, ठीक है. इसके साथ साथ देन यू हैव प्रेपोजिशन, देन वी हैव आवर कंजंक्शन. इसी तरह कंजंक्शन में ये जो आपका बेसिकली एन है, ठीक है, दिस इज साइलेंट. आपने ये नहीं बोलना कंजंक्शन, नो, ना साउंड विल बी साइलेंट, ठीक है. आप इसको बोलेंगे कंजंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है. ओके, सो वी हैव इंटरजेक्शन. और जो लास्ट पार्ट है जो आप सारे स्किप कर रहे हैं क्लास बेसिकली, और बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, दैट इज योर आर्टिकल.
जो आर्टिकल्स है ना हमारे पास जिसमें हम आ, एंड द इंक्लूड करते हैं, ये अब वो डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस, आर्टिकल इज द मोस्ट इजीएस्ट बट देयर यूसेज समहाउ इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, पूरा एक लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगी कि हम दा कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आ कहाँ कहाँ यूज करेंगे, एंड कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। यस, सो आर्टिकल्स क्लास, और इसमें बेसिकली दा जो है ना आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, वैसे अभी आप लोग सुने, वैसे हम डिटेल में कवर करेंगे। और आ और एन जो है ये आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। अब आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये तो मैम ने हमें न्यू चीज बताई, या आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आर्टिकल्स हमारे पास कहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए। So let me give you an example. If I say that Mustafa is a boy, ठीक है, I have written this sentence over here and I have used a, it means I have used an article here, ठीक है। अब ये क्लास बेसिकली आपको क्या बता रहा है, that there is a boy, his name is Mustafa, और वो जो बॉय है वो एक ही लड़का है। लाइक आपको क्वांटिटी बताई जा रही है, ठीक है, आपको नंबर बताया जा रहा है। एक तो आपने यूसेज देख ली आ की, कि जहां आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे वहां हम आ की यूसेज करेंगे, वो तो इसकी यूसेज है। लेकिन अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये क्वांटिटी बताता है कि बेसिकली कितने बॉयज हैं। इस वजह से हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ही ईट्स एन एप्पल। अब चले, एप्पल तो आपको वाल साउंड दे रहे हैं तो हमने एन यूज कर लिया, बट इसके साथ साथ आपको ये भी तो बताना है कि एप्पल जो है वो सिंगुलर है, एन, ठीक है। तो एन आपको बेसिकली आपको क्वांटिटी बता रहा है, आपको नंबर बता रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। मुस्तफा इज अ नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन अभी हम करने जा रहे हैं। एंड अगेन इज लाइक यू कैन से इज अ हेल्पिंग वर्ब, अ लिंकिंग वर्ब, और बॉय आपका अगेन आपके पास नाउन, ठीक है। सो क्लास, यू पीपल आर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके सलमान, what about others? Any question till now, class? You people can ask me. सलमान के अलावा, सलमान का क्वेश्चन भी एंटरटेन करते हैं, इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी। Yes, so basically the purpose of delivering so much about articles was that your parts of speech are not 8, they are basically 9, and you need to include articles in your parts of speech, ठीक है। इसके साथ साथ सलमान, आई वाज सेइंग कि आपने आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करना है, ठीक है। और क्यों करना है, व्हाई शुड यू लाइक, अभी आप लोगों से मैंने पूछा तो आप लोगों ने कहा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका मतलब था कि आप लोगों को पहले से नहीं था पता कि हमारे पास आर्टिकल्स भी इंक्लूडेड है, ये जो आ एन और दाम कर रहे होते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि क्यों हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स को क्यों इंक्लूड करें। बेसिकली आर्टिकल्स को, एक तो जो यूसेज है जो हमें लाइक क्लास 1 से ही पढ़ाना स्टार्ट हो जाते हैं टीचर्स के, आपका आ वहाँ यूज होगा जहाँ सिंगुलर होगी चीज, और जहाँ आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड हो, एंड वहाँ यूज होगा जहाँ आपका नेक्स्ट वर्ड का वॉल साउंड आ रहा है, ठीक है। दैट इज द यूसेज आ एन। इसके साथ साथ आ एन की यूसेज ये भी है कि ये बेसिकली आपको नाउन या प्रोनाउन की का बेसिकली नंबरिंग बताते हैं, ये आपको क्वांटिटी बताते हैं कि वो नाउन और प्रोनाउन कितने हैं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि आ इसके साथ यूज हो रहा है, इट मीन्स द बॉय इज सिंगुलर। वो अलग बात है कि हम बॉयज के साथ एस की एडिशन नहीं कर रहे हैं, हमें वहां से भी पता चल रहा है, बट हमें आ भी बता रहा है कि समवन इज सिंगुलर, ठीक है। सो यस, अगर आपका आते हैं एमसीक्यूज आते हैं तो आप लोगों ने 9 ही सिलेक्ट करने, ठीक है, आप लोगों ने 8 सिलेक्ट नहीं करने। ओके क्लास, so should we move towards the next part? Okay. Okay, so may I remove it? Class, may I remove it? Remove the whiteboard? Yes, Khadija. Khadija, are you having any question?
Khadija, I am waiting for your answer. Are you having any question? Is a linking verb? Of course, linking verb to a boy. ठीक है। अच्छा, सो हम खदीजा के क्वेश्चन को एंटरटेन करते हैं और साथ ही जो बेसिकली ये ऊपर किसने क्वेश्चन किया था, मोहम्मद ने जो क्वेश्चन पूछा है क्लास। सो आई थिंक वी शुड नॉट लाइक टुडे वी शुड नॉट बी स्टार्टिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आप लोगों की ये कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर करने की ट्राई करती हूँ। क्लास अगर आप लोगों में से लाइक टेंसेस को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है, फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो सिंपल आपको लाइक कैन यू पीपल टेल मी दैट व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? Yes, you will be getting the recorded lectures as well. So class, can you people tell me that what are the helping verbs in future and definite tense? And definite tense. Khatija, not perfect tense. ओके, सो अलीना ने हमें आंसर किया है कि हम फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस में बेसिकली टू हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। मलाइका ने भी आंसर कर लिया, ठीक है। एक हमारे पास वेल है और एक हमारे पास शैल, ठीक है। और ये हमें बताया जाता है कि वी ऑलवेज यूज इट विद ही, शी, इट, दे, और ये हमें बताया जाता है कि वी ऑलवेज यूज इट विद आई एंड वी, ठीक है। बट नाउ क्लास, जैसे आपकी लैंग्वेजेस है ना, जैसे अदर थिंग्स ऑफ द यू नो ऑफ द वर्ल्ड आर चेंजिंग, ठीक है, दुनिया में हर किस्म का चेंज आ रहा है, आपकी लाइक चीजें प्रोग्रेस कर रही होती हैं, ठीक है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। पहले हमारे पास सिर्फ गूगल होता था, अब हमारे पास अपने व्हाट्सएप में ही मेटा एआई आ गया है और चैट जीपीटी आ गया है, हम उनसे जो है ना बेसिकली हेल्प ले रहे हैं। इसी तरह क्लास जो आपके लैंग्वेजेस होते हैं ना, लाइक it can be any type of language, it can be Urdu, it can be English, it can be Persian, any type of languages, इनमें भी आपके पास चेंजेस आती रहती हैं। ये नहीं है कि आपको एक लाइक लैंग्वेज दे दी गई सो उसमें आप जो है ना वो उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। नो, इट इज कंप्लीटली लाइक यू कैन से कि इनकरेक्ट है। अब जो मैंने आप लोगों से पूछा कि फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस में कितने हेल्पिंग वर्ड्स यूज होते हैं, आपने बताया जी हमारे पास टू हेल्पिंग वर्ड्स यूज होते हैं। ये टू हेल्पिंग वर्ड्स क्लास तब यूज होते थे जब लाइक ये आप कह सकते हैं कि आपकी जो ट्रेडिशनल इंग्लिश थी ना, ट्रेडिशनल इंग्लिश का मतलब होता है आपकी थोड़ी सी पुरानी इंग्लिश, लाइक आप कह सकते हैं 15 to 20 years अगो, ठीक है। उस इंग्लिश में बेसिकली हम ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते थे, जहां हम वेल के साथ, वेल का जो यूज करते थे वो ही, शी, एट और दे के साथ करते थे, और शेल जो है बेसिकली हमें। अब आप लोगों ने याद रखना है क्लास कि आपके जो फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस है ना, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और दैट इज वेल। वो जो प्रोनाउन हम वहां यूज करते थे वो हम यहाँ लेके आए। और ये रूल कहाँ से आया? ये रूल आपको बेसिकली मॉडर्न इंग्लिश ने दिया। जैसे लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, मॉडर्न इंग्लिश ने दिया कि अब आप लोगों ने शेल को रिमूव कर देना है और आपने आई और वी के साथ भी आपने वेल को यूज करना है। इसी तरह जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल इंग्लिश थी, ट्रेडिशनल इंग्लिश का मतलब होता है पुरानी इंग्लिश, वो आपको बताती थी कि उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश है वो आपको बताता है कि यू पीपल हैव 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके पेपर में भी अगर क्वेश्चन आता है सो यू पीपल मस्ट चूज 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं चूज कर। इज इट कंपल्सरी टू यूज आई एंड वी विद Hosanna? I have talked about this. Like it is wrong. It is wrong. ठीक है, वो अगर आपके मार्क्स डिडक्ट करती हैं तो बिल्कुल लाइक शी इज राइट कि अब आपने आई और वी के साथ वेल ही यूज करना है। यू विल आल्सो बी यूजिंग वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स और ये आपका कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। When I was a student and my teacher first told me about this rule, so I was thinking कि ये मैम क्या कह रही है, ये तो हम
आई और वी के साथ जो है वो शैल यूज करते थे और बाकी, बट दिस इज रॉन्ग। आप लोगों ने हर प्रोनाउन के साथ बेसिकली वेल यूज करना है, और सेम गोज फॉर योर पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वेल। Poem can be pronounced as poem and it can also be pronounced as poem. ठीक है? Difference of British and American English. Ma'am, in exam we will use more, yes, but our teacher said clear advice. You should basically discuss this thing with your teacher that can we like don't include articles? Can't we include articles in parts of speech? She must have the answer. Ma'am, we can use well instead of you can, no, you must. ठीक है, you must use memorative. If your if your teacher doesn't agree, it's okay, no problem. I will be giving you the proof. ठीक है, so now do we write complicated or very simple but the thing is okay. Okay class, so I think यहाँ तक कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आप अभी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, जहाँ मुझे लग रहा है कि आप लोग सिर्फ इस बात में कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर हमारा एमसीक्यू आ गया है कि 8 पार्ट्स होते हैं या 9 पार्ट्स होते हैं, पहले तो आपका इस टाइप का एमसीक्यू आता ही नहीं है। ठीक है, लाइक पास पेपर्स उठा के देगी, उसमें आपको इस तरह का एमसीक्यू नहीं आता। आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। बट जस्ट सपोज अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आ भी गया है, you need to select 9 parts of speech because your teachers and your paper makers are basically follow modern English. ठीक है, ओके सो मुस्तफा का क्वेश्चन हम entertain कर लेते हैं क्लास बिकॉज वी हैव ओनली 5 minutes लेफ्ट। ओके मुस्तफा, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर vocabulary आपकी रेस्ट है, यू कैन राइट complicated words, no matter how much complicated they are, you can go for them until and unless your spellings are not wrong. You can use both color and color. You can, Abu Bakr, both of the spellings are correct. Okay, so Malaika, I am repeating the parts of speech. Basically, they are noun. We have 9 parts of speech. ठीक है? They are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, interjection, preposition, and articles. ओके क्लास, एनी अदर क्वेश्चन? मैंने आज सोचा था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नाउन का है वो हम स्टार्ट करेंगे और उसकी टाइप्स थोड़ी सी देख लेंगे, बट यू पीपल वर कंफ्यूज इन दीज टॉपिक्स, सो आई गिव देम टाइम. So hopefully we will be starting and covering all the types of pronouns. You need to be present tomorrow. All the types of the pronoun along with the examples. Along with the examples tomorrow. ठीक है? Okay class, any question from your side? आपकी मैम ने अगर आर्टिकल्स आपको नहीं लिखवाए पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आप इंक्लूड कर दें पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, देखिए क्लास, ये अब देखिए, आई नो कि आप लोग अभी छोटे हैं तो आप लोगों को यही क्वेश्चन होगा कि ये हमें टीचर ने कराया है, और ये जब लाइक ये आप लोग नहीं कह रहे, ठीक है, लास्ट क्लास में भी, लास्ट बैच में भी, जब लाइक लास्ट ईयर बच्चे मेरे पास आए थे तो वो भी यही कह रहे थे। फिर लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर उनको समझ आ गई थी मेरे साथ पढ़ पढ़ के कि ये जी आपके आर्टिकल्स तो वाकई इंक्लूड होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मैं आपको एक प्रूफ देती हूँ, देखें, अगर ये सेंटेंस हम ऐसे लिखें, शी इज गर्ल, डू यू पीपल थिंक दैट दिस सेंटेंस लुक्स कंप्लीट? लाइक आप लोग खुद डिसाइड करें, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि ही ईट्स एप्पल, डू यू थिंक दिस सेंटेंस लुक्स कंप्लीट? Abu Bakr, it is looking complete. He eats apple. Does look complete. It look complete. He eats an apple. ठीक है? No, because of article.
ठीक है। अब देखें, जैसे आपका ही यहाँ एक प्रॉपर वर्ड है ना, और इसको हम कहेंगे कि ये हमारा जी प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन है। इसी तरह हम यहाँ अगर एन यूज करेंगे और आ यूज करेंगे, ये भी आपके प्रॉपर वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ड्स हैं, आपको कंप्लीट एक इंग्रेडिएंट है आपके पास, आपको सेंटेंस मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, यू शुड यू शुड बी नोइंग द रीजन। ठीक है, अब आप लोग आप लोग इस चीज में कंफ्यूज ना हो कि हमें ये टीचर ने कराया है नहीं कराया। आई एम हियर टू गिव यू द रीजन, आई एम गिविंग यू द रीजंस बेसिकली कि व्हाई वी आर इंक्लूडिंग आर्टिकल्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, आपको रिकॉर्डिंग जी मिल जाएगी शहनशाह। Should be written as he eats an apple. Ji Abu Bakr. Yes, I was discussing the same with your 9 more, but almost is a problem. Article is very crucial and it should be counted as part of speech. But Alina, what I have seen in current books that they are being including articles as parts of speech. I have also seen some of the grammar books basically where they have included articles as parts of speech. But change needs time, and so does our books as well. Versus speech versus Sanjana. Let me tell you one. Okay, Mustafa. So I can't because I have next class at 3:30 tomorrow, and day after tomorrow I will be taking a class of 1 hour. ओके सलमान, सो बेसिकली हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को देखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, और हमने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीचेस देखी हैं कि आपके पास एक ओरल स्पीच होती है, एक रिटन स्पीच होती है। ओरल, बेसिकली ओरल स्पीच इज द स्पीच वेयर वी ओनली कम्युनिकेट एंड वी यूज आवर टंग। फॉर एग्जाम्पल, राइट एट द वेरी मोमेंट आई एम यूजिंग माई टंग टू स्पीक। ठीक है, you I am speaking and you people are listening, so this type of speech is basically called as an oral speech. And written speech is where we write sentences and where we communicate our thoughts on a paper. So all that, so next हमने देखा कि parts of speech हम पढ़ना तो start कर देते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि what is meant by parts of speech. So parts of speech are all those types of parts or words, or you can say in easy words के ingredients होते हैं जो आपको sentence making में help करते हैं। बट एक और इसका पर्पस ये है कि वो जो सेंटेंस मेकिंग में आपको हेल्प करते हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में भी हो। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं है कि आप बोलेंगे गर्ल इज शी। नो, आपको पता है कि सब्जेक्ट आपका पहले आता है, देन आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, देन आपका आर्टिकल होगा, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट या नाउन होगा। सो वो एक ऑर्डर फॉर्म में भी हो ताकि सेंटेंस एक सेंस बनाए आपके सामने। ठीक है, और उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है कि आपके पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आई हैव आल्सो टेकन योर क्वेश्चंस। यू पीपल वर सेइंग कि आर्टिकल्स कैसे इंक्लूड हैं पार्ट ऑफ स्पीच में और कैसे इंक्लूड नहीं है। सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं कि आर्टिकल्स आपके इंक्लूड हैं। ठीक है, ओके क्लास, सो we'll be meeting tomorrow inshallah, and we will be starting with our proper nouns. Yes, we will be doing nouns. ठीक है, and its types, basically there are 11 to 12 types of nouns. Basically Shansha, I will be sharing the homework and of today's related to today's work in group. ठीक है, it will be in a quiz form, so you people need to submit it, and then we will be discussing it, your mistakes or anything. Okay class, Allah Hafiz and take care then.